Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 16th problem of final account, intermediate first year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that prepare final account for the year ended 31/3/2018. In this final account, the name of the business is missing. ठीक है, तो heading में business का नाम नहीं आता. We need to write dash instead of name. हम simple एक dash लिख डालेंगे, right? So let us move towards our question. Question के दो divisions है. The first part is a trial balance and the next part is adjustments. What we'll do, we'll skip the trial balance. Trial balance को skip करके हम क्या करते हैं, हम सीधा adjustment में आ जाते हैं. Now let us understand these adjustments. ये adjustment है क्या और adjustment को treat कैसा करना. So always remember, every item of adjustment must appear twice. Adjustment का हर item दो बार लिखना है. So for that purpose, we are what we are doing, we are marking to the related item. ये adjustment कौन से item से relate कर रहा, उसके बाजू के एक dot लगा डालो, right? So let us see outstanding salaries. Question में salaries किधर है, देखो trial balance में salaries are here, ठीक है, that is 49,000. salaries के बाजू के एक dot लगाओ. And after that bad debts, create a reserve for bad debts and provision for discount on debtors. So ये एक adjustment के तीन हिस्से हैं. So this is nothing but three adjustment, and all these three adjustments, bad debts, RBD and RDD, reserve for bad and doubtful debts and reserve for discount on debtors, ये तीन adjustment है. तो these all three adjustments are related to debtors. ये three adjustment debtor से related है. So what we'll do, we will search debtors in our question 92,000. अब debtors के बाजू पहला dot लगाओ bad debts, दूसरा dot लगाओ RBD, तीसरा dot लगाओ RDD, right? So this dot are nothing but a representation of adjustment. dot का मतलब क्या है कि ये item पे adjustment है. कितने adjustment, तीन adjustment है, इसलिए हम 3 dots लगाए थे. Then after that we have depreciation on machinery. machinery किधर है देखो, और machinery पे एक dot लगा दो आप, right? Then after that the next adjustment is a lighting. factory के 4,000 है और office के 2,000 है. factory की lighting trading account में लिखना है हमको, और office की lighting profit and loss account में लिखना है. So let us see lightings question में किधर है, इधर है 6,000. ये 6,000 में से 4,000 फैक्ट्री के हैं और 2,000 ऑफिस के हैं. So lighting के बाजू के एक डॉट लगा डालो. Then after that manager commission is 10% on net profit after charging such commission. Always remember, before charging commission का अलग फॉर्मूला है और after charging such commission का अलग फॉर्मूला है. So this adjustment is on net profit. तो ये एडजस्टमेंट को हम डिस्कस भी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम करेंगे. Now let us understand all the adjustments in detail. क्लोजिंग स्टॉक को दो बार लिखना रहता. पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करो, दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड रिकॉर्ड करो. ठीक है, पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड. देन आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग सैलरीज, पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड सैलरीज में ऐड करो आउटस्टैंडिंग सैलरीज. फॉर द सेकंड टाइम वी नीड टू राइट आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज अवर लायबिलिटी ऑन अवर बैलेंस शीट. दूसरी बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिख देना है. देन आफ्टर दैट बैड डेट्स. अब ये एडजस्टमेंट बहुत क्रूशियल है बिकॉज बैड डेट्स भी हमको आरबीडी भी है और आरडीडी भी है. लेट अस अंडरस्टैंड दीज ऑल थ्री एडजस्टमेंट इन डिटेल्स. ठीक है, और ये पूरे न्यू एडजस्टमेंट्स है, न्यू आइटम्स है. लेट अस सी. बैड डेट्स को पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है और दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटार्स की वैल्यू में से डिडक्ट करना है, राइट? Then after this create a reserve for bad debts 5%. अब इसका नाम क्या है, हम इसको क्या लिखते हैं, RBD. अब RBD कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? बैड डेट्स डेटार्स माइनस न्यू बैड डेट्स इनटू रेट ऑफ RBD. अब न्यू बैड डेट्स किसको बोलते हैं? द बैड डेट्स व्हिच आर अपीयरिंग ओनली इन एडजस्टमेंट्स. तो डेटार्स की वैल्यू में से जो बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिख रहे हैं 2000 उसको माइनस करो, इनटू रेट ऑफ RBD कर डालो. ठीक है, तो पहली बार आरबीडी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है और दूसरी बार बैलेंस शीट में डेटार्स की वैल्यू में से डिडक्ट करना है, राइट? देन आफ्टर दिस वी हैव प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटार्स 2%. अब इसको हम क्या लिखते हैं, आरडीडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटार्स. इसके लिए एक फॉर्मूला है. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? डेटार्स माइनस न्यू बैड डेट्स जो कि 2000 आया था क्वेश्चन में हमारे, माइनस न्यू आरबीडी जो कि 5% है, राइट? इन पूरों को माइनस करे बाद इनटू रेट ऑफ आरडीडी करना है हमारा. ठीक है, पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटार्स में से पहले न्यू बैड डेट्स माइनस करो, फिर आरबीडी माइनस करो, फिर आरडीडी माइनस करो.
ठीक है. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड मशीनरी की वैल्यू में से डिडक्ट करना है. ठीक है. लाइटिंग, अब लाइटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. ठीक है. लाइटिंग 6000 है क्वेश्चन में, इसमें से 4000 फैक्ट्री के है, इट मस्ट बी टेकन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, राइट. एंड 2000 ऑफिस के है, इट मस्ट बी टेकन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डन. एमडी कमीशन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कमीशन. अब ये 6 एडजस्टमेंट को हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस सी, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. क्वेश्चन में बिजनेस का नाम नहीं दिया, इसलिए हम मैसेज के बाजू डैश लिखे. इफ यू आर मेकिंग एन अकाउंट, इट इज मैंडेटरी टू राइट डीआर एंड सीआर ऑन बोथ द साइड्स. नाउ लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्रेडिट आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज सेल्स, एंड द लास्ट क्रेडिट आइटम इज क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सिर्फ 2 आइटम्स लिखते हैं हम. पहला रहेगा सेल्स, दूसरा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक. सेल्स इज अवर इनकम, और इनकम हमेशा क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस में मिलती. सेल्स 44,72,350 है. इमीडिएटली आफ्टर दिस वी विल सर्च फॉर सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस में मिलता आपको. ठीक है. रिटर्न्स है जो कि 5000 है, तो हम क्या करते हैं, सेल्स की वैल्यू को इनर कॉलम में लिख के उसमें से 5000 माइनस करते. देन आफ्टर दैट द लास्ट आइटम, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, एंड वी कैन ऑलवेज फाइंड क्लोजिंग स्टॉक in our adjustment, that is 53,000. Immediately after reading this, we will move towards the credit side of our trading account, and we will write sales 4,72,350, and from this we need to deduct 5,000, that is sales return. ठीक है. तो नेट सेल्स कितनी हो गई, 4,67,350. लास्ट आइटम इज क्लोजिंग स्टॉक, जो कि कितना है, 53,000, राइट. फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द क्रेडिट आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. अब हम डेबिट साइड मूव होंगे. डेबिट साइड 3 परमानेंट आइटम्स है. पहला है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा है परचेजेस, तीसरा है वेजेस. नाउ लेट अस सी these expenses on the debit side of our trial balance. ओपनिंग स्टॉक 50,250, परचेजेस 2 lakhs. अब इसमें से परचेज रिटर्न लेस करना है हमको, एंड दैट इज परचेज रिटर्न है 2,540. परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट बैलेंस में मिलती है आपको. एंड द थर्ड आइटम इज वेजेस. वेजेस क्वेश्चन में दैट इज 40,000. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट ऑल दीस 3 आइटम्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ अवर ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है. पहला है ओपनिंग स्टॉक 50,250, दूसरा है परचेजेस, इसकी वैल्यू में इनर कॉलम में लिखा. फ्रॉम दिस वी नीड टू डिडक्ट परचेज रिटर्न. ठीक है. दैट इज 2,540. तो नेट परचेजेस कितने होते हैं, 1,97,460. द थर्ड परमानेंट आइटम इज वेजेस, जो कि 40,000 है. अब व्हाट वी नीड टू राइट, वी नीड टू राइट ऑल द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, all the expenses which are related to goods when they are purchased, and all the expenses which are related to factory. Now let us see what are the various expenditure which are related to goods and factory on the debit side of our trial balance. Trial balance के debit side देखो. ठीक है. and we have lighting. ठीक है. ये पहला expenditure है lighting. then after that we have freight. ठीक है. lighting, freight, ये 2 expenditures मिले हमको. So what we will do, we'll move towards our adjustment and verify is there any other expenditure which is related to trading account debit side. ठीक, इसमें नहीं है कोई भी. So directly what we will do, we will write lighting. अब lighting के ऊपर डॉट है, that means we need to go in our adjustment में जाके हम देखें तो lighting में से फैक्ट्री की 4,000 है, तो फैक्ट्री का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आता, राइट. और 2,000 ऑफिस की है, so ऑफिस की लाइटिंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है हमको. देन आफ्टर दिस वी हैव फ्रेट, दैट इज 5,300. फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द आइटम्स, डेबिट आइटम्स एंड क्रेडिट आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. अब नाउ वी विल फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. ठीक है. ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए व्हाट वी विल डू द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड. इसमें से जो टोटल ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिख डालो. क्रेडिट साइड टोटल इज मोर, ये ज्यादा है, दैट इज 5,20,350. इसको हम क्रेडिट साइड डेबिट साइड भी लिख देंगे, 5,20,350. and from this 5,20,350 we will deduct the total of debit side. ठीक है. इसको माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन होता है, दैट इज 2,23,340. ठीक है. अब कैरी डाउन लिखे बाद ब्राउट डाउन करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. what will happen, the gross profit carried down will jump from the debit side and it will appear on the credit side below the total, that is 2,23,340. अब
ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन से ब्रॉट डाउन लिखते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो गया. Now let us see, is there any income which is related to profit and loss account on the credit side of our trial balance. ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड आओ और देखो, इज देयर एनी इनकम विच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये पहली इनकम है हमारी, और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ये दूसरा है, ये दिस इज गेन. सो रिमेंबर वन थिंग, दिस इज आरबीडी, ओल्ड आरबीडी. द आरबीडी appearing in trial balance is old RBD, ठीक है, and it is a credit item. It must be considered on the credit side of profit and loss account. Similarly, interest on drawings भी क्रेडिट आइटम है, इसीलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते हैं. अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एडजस्टमेंट में आता था तो इसको 2 बार लिखते थे हम, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इन आवर ट्रायल बैलेंस. और ट्रायल बैलेंस का रूल क्या है? एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस मस्ट अपीयर वंस. ट्रायल बैलेंस के हर आइटम को सिर्फ एक बार लिखना है हमको. तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते हैं, कहीं को, बिकॉज दिस इज अ क्रेडिट आइटम, राइट. एंड रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज आल्सो अ क्रेडिट आइटम. तो ये 2 इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट है हमको मिल गए. Now let us see, is there any income which is related to profit and loss account? No, there is no income in our adjustment which is related to profit and loss account. Now what we'll do, we'll write these 2 incomes on the credit side of our profit and loss account. ठीक है, पहला हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1000, देन उसके बाद हो गया आरबीडी, दैट इज ओल्ड आरबीडी जो कि 1000 है. देन इमीडिएटली आफ्टर राइटिंग दिस विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, जितने भी इनकम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थे हम लिख दिए. अब हम डेबिट साइड मूव होंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पहला आइटम सैलरीज रहता. लेट अस सर्च सैलरीज ऑन द डेबिट साइड ऑफ आवर ट्रेडिंग ऑफ आवर ट्रायल बैलेंस. देखो सैलरीज किधर है, 49,000 सैलरीज है, एंड सैलरीज के ऊपर एक डॉट है. डॉट दिखते कि हम एडजस्टमेंट में आके वेरीफाई करते हैं. आउटस्टैंडिंग को हमेशा ऐड करना है. सो डायरेक्टली विल राइट द अमाउंट ऑफ सैलरीज इन द इनर कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड करो, दैट इज 5000. ऐड करे बाद इसका टोटल कितना हो जाता? 54,000. इसके बाद व्हाट वी नीड टू राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, जो एक्सपेंसेस और लॉस आप ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं कंसीडर करें वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर दें. नाउ लेट अस सी, द फर्स्ट एक्सपेंसेस इज लाइटिंग. ऑफिस लाइटिंग 2000 है, ले लो इधर. ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, उसके बाद हमको मिला, यस, 2 ही थे इधर, लाइटिंग और एडवर्टाइजमेंट. सैलरीज हम ऑलरेडी ले लिए. नाउ लेट अस सी इन आवर एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में पहला क्या है? बैड डेट्स. दूसरा क्या है? आरबीडी. तीसरा क्या है? आरडीडी. चौथा क्या है? डिप्रिसिएशन. ठीक है, एंड मैनेजर्स कमीशन. ये पूरे लिखेंगे हम. उसके बाद मैनेजर्स कमीशन पे जाएंगे. नाउ लेट अस सी, आफ्टर सैलरीज वी विल राइट लाइटिंग. ऑफिस की कितनी है? 2000 है. ठीक है, 2000 लिख दिया हमने. उसके बाद एडवर्टाइजमेंट 4800. नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द आइटम्स व्हिच वेयर प्रेजेंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ आवर ट्रायल बैलेंस. अब हम एडजस्टमेंट में जाएंगे. एडजस्टमेंट में पहला क्या दिखा हमको? बैड डेट्स 2000 है. उसके बाद आरबीडी. अब आरबीडी की कैलकुलेशन गौर से देखिए. 92,000 डेटार्स है. डेटार्स माइनस न्यू बैड डेट्स. न्यू बैड डेट्स कितने हैं? 2000. सो 92,000 माइनस 2000, 90,000 हो गया. 90,000 का 5% कैलकुलेट करना है आप. सिंपल एंड वेरी इजी. पहले 10% कैलकुलेट करो, एक जीरो हटा डालो. कितना हो गया? 9,000 हो गया. 9,000 10% की वैल्यू है तो 5 की कितनी रहती? आधा कर दो 9,000 को. कितना हो गया? 4,500. सो 4,500 इज द वैल्यू ऑफ 5% एंड दैट इज आरबीडी. न्यू आरबीडी. ओल्ड आरबीडी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना है. न्यू आरबीडी जो एडजस्टमेंट में दिख रहा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है. Right, then after that we have third adjustment on debtor, that is RDD, reserve for discount on debtors. अब इसकी कैलकुलेशन गौर से देखो आप. इसका फॉर्मूला क्या है? डेटार्स माइनस न्यू बैड डेट्स माइनस न्यू आरबीडी. तो डेटार्स की वैल्यू कितनी थी? 92,000 माइनस 2,000, ये न्यू बैड डेट्स है, माइनस न्यू आरबीडी अभी कितना है? 4,500. तो ये पूरों को माइनस करे बाद व्हाट विल बी द वैल्यू? 85,500. अब इसका कितने परसेंट कैलकुलेट करना है हमको? 2%. आरडीडी कितना है देखिए इन आवर क्वेश्चन, द आरडीडी इज 2%. सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो विल गेट 1710. इसको 2% कैलकुलेट करने के लिए सिंपल एंड वेरी इजी. 10% को एक जीरो कट करो बोला हमें, और 1% को 2 जीरोस. तो ये 85,500 में से 2 जीरोस एलिमिनेट कर दो आप, तो कितना हो गया? 855. इसको डबल कर डालो तो 1710 होता, जो कि आरबीडी की वैल्यू है. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. 5% है. मशीनरी की वैल्यू 40,000 है. 40,000 का 5% 2,000 होता.
राइट। देन आफ्टर दैट वी हैव मैनेजर्स कमीशन, जो कि कितना आया 14,030। अब ये कैसा आया, लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। इसके लिए हम सीधा हमारे एडजस्टमेंट में चल जाएंगे। मैनेजर्स कमीशन कहाँ था, इधर था। एमडी कमीशन मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर is 10% after charging such commission. Managing director's commission on net profit is 10% after charging such commission. अब ये बिफोर और आफ्टर का फर्क देखो आप क्या है इधर। वी हैव अ फॉर्मूला, मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन चार्ज करने से पहले नेट प्रॉफिट कितना था वो मालूम करना है हमें। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स कमीशन, ठीक है। नेट प्रॉफिट मैनेजिंग डायरेक्टर को कमीशन देने से पहले कितना था वो मालूम करना है, इनटू रेट ऑफ कमीशन, ठीक है, बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। सिंपल, ये मैनेजर्स कमीशन आ जाता है ये फॉर्मूला का। अब नाउ लेट अस फाइंड आउट, क्या मालूम करना है हमको, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स कमीशन, ठीक है। ये फॉर्मूला में सिर्फ ये एक चीज नहीं मालूम हमको, रेट ऑफ कमीशन 10% है तो 10% इधर आ जाता, 10% इधर आता, 10-10, ठीक है। और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन कितना है हम मालूम करेंगे। उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करो आप और डेबिट साइड का टोटल करो। ये 2,23,340, 1,000, तो इसका टोटल कितना हो जाता 2,25,340। फिर उसके बाद डेबिट साइड का टोटल करो। डेबिट साइड क्या दिख रहा है आपको, 54,000, 2,000, 4,800, 2,000, 4,500, 1,710 एंड 2,000। ये पूरों को ऐड करो तो इसका टोटल हमको कितना आता, इसका टोटल हमको आता 71,010, ठीक है। अब ये टोटल ऑफ क्रेडिट में से टोटल ऑफ डेबिट माइनस करो तो आपको आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। ये 1,54,330, राइट। अब इसको जो है सो सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूले में। फॉर्मूले में क्या था 1,54,330, ये नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन है, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10। ये 10 क्या है, रेट ऑफ कमीशन। तो इसको सिंप्लीफाई करे बाद क्या होता है 1,54,330 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। अब क्या करना है आपको, लेट अस सी, ये एक जीरो इधर से कैंसिल होता और एक जीरो इधर से, तो क्या बच गया हमको 1,54,330 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 11 से, 1,54,330 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या आता 14,030। दिस इज मैनेजिंग डायरेक्टर्स कमीशन। अब ये 14,030 को इधर लेके आके लिख डालो, ठीक है। और ये कमीशन हम अब भी कैलकुलेट करें तो इसका मतलब हम मैनेजिंग डायरेक्टर को कमीशन नहीं दिए, तो दिस इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। तो पहली बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है और दूसरी बार बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड शो करना है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, वी विल डू द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स का टोटल करो। डेबिट साइड का तो कितना आता 2,25,340। फ्रॉम दिस 2,25,250 we need to deduct the total of all the debit side including managers commission। जब आप इसको माइनस करेंगे so the answer will be 1,40,300, ठीक है। so this is a net profit after charging managers commission, right। so what we will do, directly we'll move towards the balance sheet, ठीक है। and this net profit must be transferred to capital account। now immediately after net profit we will begin with the बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पहला आइटम हम लिखते हैं कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। एंड ऑलवेज रिमेंबर इफ यू वांट टू सर्च लाइबिलिटीज इन आवर क्वेश्चन वी नीड टू सर्च ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ आवर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड आके देखो, यस कैपिटल इज हियर, दैट इज 45,000 एंड टू दिस 45,000 वी नीड टू ऐड नेट प्रॉफिट, ठीक है। सो व्हाट विल डू, विल राइट द वैल्यू ऑफ कैपिटल इन द इनर कॉलम क्योंकि 45,000 है एंड टू दिस 45,000 विल ऐड अ नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इसकी जो भी वैल्यू रहेंगी वो कितनी रहेंगी 1,85,300। देन आफ्टर दिस विल सर्च फॉर द वेरियस लाइबिलिटीज, ठीक है। अब लाइबिलिटी को सर्च करना है तो आपका काम क्या है, क्रेडिट साइड चल जाओ और देखो क्रेडिट साइड क्या क्या दिख रहा है हमको, देयर इज ओनली वन लाइबिलिटी दैट इज क्रेडिटर्स, ठीक है। नाउ लेट अस सर्च इज देयर एनी लाइबिलिटी इन आवर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में देखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये सेकंड आइटम हो गया। देन आफ्टर दैट वी हैव
कमीशन पेएबल टू मैनेजर, अभी कमीशन दिए ने हम, सिर्फ कैलकुलेट करें वो भी एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग आउट नेट प्रॉफिट। सो दो लाइबिलिटीज हमारे एडजस्टमेंट में है और एक लाइबिलिटी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिखी है हमको। So directly we'll write creditors 56,460. Then after that we'll write outstanding salary, that is 5,000, and after that we will write managing director's commission which is payable, अभी पे करें नहीं, पे करना है 14,030. From this we have completed all the liabilities. Now what we'll do, we'll move towards the asset side of our balance sheet. अब बैलेंस शीट में एसेट ढूंढना है बोले तो किधर जाना, we'll go towards the debit side in our trial balance. डेबिट साइड पहला एसेट क्या है देखो, मशीनरी, दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग्स, तीसरा है डेटार्स, चौथा है कैश एट बैंक, पांचवा है फर्नीचर। 5 एसेट्स मिले हमको, ठीक है, इन अवर ट्रायल बैलेंस। देन आफ्टर विल लुक फॉर एसेट्स इन अवर एडजस्टमेंट्स, ठीक है, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक जो कि 6 एसेट्स हो गए टोटल। देन आफ्टर दैट यस ओनली क्लोजिंग स्टॉक। नाउ व्हाट वी विल डू, डायरेक्टली विल राइट दीज 6 एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ अवर बैलेंस शीट। पहला एसेट क्या है हमारा, मशीनरी। मशीनरी के ऊपर डॉट है, दैट मींस देयर इज अ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करते माइनस करो तो 38,000 मशीनरी की नेट वैल्यू है। देन आफ्टर दैट वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग्स, उसके बाद क्या है सन्ड्री डेटार्स। सन्ड्री डेटार्स पे 3 डॉट्स है, दैट मींस वी आर हैविंग 3 एडजस्टमेंट ऑन आवर डेटार्स। पहला क्या है न्यू बैड डेट्स जो कि 2000 है, माइनस करें तो 90,000 वैल्यू बचती। फिर उसके बाद आरबीडी 5% जो कि 4,500 है, इसको माइनस करें तो वैल्यू बचती 85,500। एंड फ्रॉम दिस 85,500 वी नीड टू डिडक्ट RDD 2% जो कि 1710 है, राइट। इसको डिडक्ट करे बाद डेटार्स की नेट वैल्यू रहेंगी 83,790, 83,790, ठीक है, ये डेटार्स की वैल्यू हम लिख लिए। उसके बाद लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एसेट दैट इज कैश एट बैंक 28,000। उसके बाद क्या दिखा हमको, फर्नीचर। द लास्ट एसेट एज पर अवर एडजस्टमेंट इज, अब यहां तक हम ट्रायल बैलेंस में जितने भी एसेट्स थे लिख लिए। लास्ट एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक एज पर अवर एडजस्टमेंट दैट इज 53,000। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल करो आप और लाइबिलिटी साइड का टोटल करो, यू विल गेट द सेम, दैट इज 2,60,790 on the asset side and 2,60,790 on the liability side. From this we have completed all the assets and liabilities, ठीक है। now we have completed, कौन सा क्वेश्चन था ये, this was the 16th question, ठीक है। In the next video we are going to solve 17th question. Till then stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.